A very good morning to my dear students. So, class, today we are going to start a new unit, a new chapter, Unit 6, Feathered Friend, written by Sir Arthur Charles Clarke. Why this lesson has been given a name like Feathered Friend? Feathered means punk and friend, as you know, friend, dost. So, a bird somehow proved to be a good friend. The bird is little yellow color bird, canary bird. In this chapter, a canary bird saves somehow life of this space station. The story is based on a space station, and this canary bird saved somehow life of different pupils of this space station. Let's read how this bird proved to be a feathered friend. Para 1. To the best of my knowledge, there's never been a rule that forbids one to keep pets in a space station. No one ever thought it was necessary, and even had such a rule existed. I am quite certain that Swan Olsen would have ignored it. In this para, writer wants to say that I don't remember is there any kind of rule of bringing pets to a space station is forbidden or is means not allowed. किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि वो स्पेस स्टेशन पर पेट्स को लेकर आ सकता है, इसीलिए इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है. बट अगर होता तो मुझे जहाँ तक लगता है तो ये जो कैरेक्टर है स्वैन ऑल्सन वो उसको अवॉइड कर देता और वो फिर भी अपने पैट को स्पेस स्टेशन में लेकर आता. तो यानी मेन कैरेक्टर जो है वो कौन है? स्वैन ऑल्सन. विद अ नेम लाइक दैट यू विल पिक्चर स्वैन एट वंस एज a 6 foot 6 Nordic giant, built like a bull and with a voice to match. Had this been so, his chances of getting a job in space would have been very slim. Actually, he was a very little fellow like most of the early spacers. नाम सुन के तो आपको ऐसा लगा होगा जैसे कि वो बड़ा ही लंबा चौड़ा जायंट, नॉर्डिक जायंट 6 फुट का मतलब बड़ा सा. जो जर्मनी के लोग होते हैं यूरोपियन साइड के, उनको बोला जाता है. द नॉर्डिक पीपल फ्रॉम नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्री लाइक डेनमार्क, फिनलैंड, आइलैंड एंड नॉर्वे are generally thought to be tall, bony and light haired. Okay, तो ब्राउन कलर के बाल होते हैं, गोरे होते हैं और काफ़ी लंबे चौड़े हट्टे कट्टे होते हैं. तो दैट इज़ वाई सेइंग कि नाम से तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा है, बट इन रियलिटी ही वॉज नॉट लाइक दैट. वो ऐसा नहीं था. ही वॉज जस्ट अ थिन बट स्ट्रॉन्ग, स्लिम बट स्ट्रॉन्ग. और इफ़ ही वुड बी अ जायंट वन, अगर वो जायंट वन होता तो उसको स्पेसशिप में काम, स्पेस क्राफ्ट में मीन्स काम नहीं मिलता, उसको यहाँ पर जॉब नहीं मिल पाता. ये वाई? क्योंकि स्पेस स्टेशन और स्पेस शिप्स ये सारी चीज़ें वेट से बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि जहाँ पर होती है वहाँ ग्रेविटी नहीं होता है. ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी एक फोर्स होती है, एज़ यू नो, आपने साइंस में पढ़ा है, जो आप ज़मीन की शक्ति होती है. तो ज़मीन हर चीज़, हम जब किसी चीज़ को ऊपर उछालते हैं तो वो नीचे की तरफ ही आती है, वो स्टेबल नहीं रहती हवा में. बट जब इसकी बात हम स्पेस में करें तो स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है, वहाँ पर चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है. हर चीज़ ऊपर की तरफ ही रहती है. आपने भी कितनी सारी इमेजेस में देखा होगा ना कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो हमेशा लेटे हुए, तिरछे, उल्टे ऐसे ही नज़र आएंगे आपको. तो ये कॉज ग्रेविटी. तो इसलिए इतने भारी लोग स्पेस क्राफ्ट में नहीं चल सकते हैं, नहीं काम कर सकते हैं. दैट इज़ वाई ही सेड कि कम वज़न था, इसीलिए उसको वहाँ जॉब मिल गई. स्वैन वॉज वन ऑफ आर बेस्ट कंस्ट्रक्शन मैन, और वो बहुत ही कंस्ट्रक्शन में माहिर था. ही एक्सेल एट द ट्रिकी एंड स्पेशलाइज वर्क ऑफ कलेक्टिंग गिडर्स. गिडर्स कलेक्ट करना, गिडर्स में लॉन्ग थिक पीसीस ऑफ मेटल for construction. They floated around, making them to the slow motion 3-dimensional ballet that would get them into their right position. Then he would fuse the pieces together when they were precisely fitted into the correct pattern. It was a skilled and difficult job. Actually, this job was difficult and required more skill, and Swan was very perfect in this. For a spacesuit is not the most convenient of clothes in which to work, and in a spacesuit
this kind of work, doing this kind of work is not an easy task. However, Swan team had one great advantage over the construction gangs you see putting up skyscraper down on earth. They could step back and admire their work without being abruptly parted from it by gravity. एक्चुअली देर वॉज नो ग्रेविटी, दैट इज़ वाई जो भी वो लोग बनाते थे वो उसको हवा में छोड़ देते और दूर जाकर उसको एडमायर करते, दूर से देखते कि व्हाट वी हैव डन एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बी ऑल्टर, क्या अभी सही करना है एंड ऑल. तो नीचे तो गिरेगा ही नहीं ना, कुछ भी चीज़ हवा में रख के आप आराम से हट सकते हो, बिकॉज नीचे तो कुछ गिरेगा ही नहीं, ख़राब कुछ होगा ही नहीं टूट फूट के. पैरा 4. डोंट आस्क मी वाई स्वैन वांटेड अ फैट और वाई ही चॉज the one he did. I'm not a psychologist, but I must admit that his selection was very sensible. Claribel weighed practically nothing. Her food requirements were teeny, and she was not worried, as most animals would have been, by the absence of gravity. I don't know. The writer is saying I don't know why this Swan Orson selected. चॉज मीन सेलेक्ट करी उसने, चूज सेकेंड फॉर्म चॉज, सेलेक्ट करा किसको, इसी बर्ड को. ठीक है, किस बर्ड को, क्लेरिबेल को, क्योंकि उसका जो पसंद है वो एकदम सही है और सेंसिबल है. सेंसिबल मीन्स जिसमें अकल लगाई गई हो, अच्छे से सोचा गया हो, कोई रैंडम से डिसीजन नहीं है, सोच समझ के. वाई, बिकॉज दिस बर्ड यूज टू हैव अ रियली लाइट वेटेड बर्ड. ये एक बहुत ही हल्की वज़न की चिड़िया होती है, एंड टीनी वन बहुत छोटी सी होती है, एंड फूड रिक्वायरमेंट और इज़ ऑल्सो वेरी लिटिल, और खाना पीना भी उसको बहुत कम चाहिए होता है. तो ऐसी बर्ड आराम से इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है वहाँ सर्वाइव कर पाएगी. आई फर्स्ट बिकेम अवेयर दैट क्लैरिबल वॉज अबॉर्ड व्हेन आई वॉज सिटिंग इन द लिटिल Chubby Hall, laughingly called my office. When I heard the musical whistle beside my ear, I assumed that it had come over the station intercom and waited for an announcement to follow. So firstly he noticed the presence of that bird when he was sitting in his cubby hall. Cubby hall means a storeroom, kind of a storeroom where all required tools and other stuffs are kept. So he and his other friends laughingly means मजाक में उसको छोटा सा उसको ऑफिस कहते थे. तो when he was sitting in Cubby Hall, he listened something music like a whistle. He thought that it must be a announcement, but slowly he realized that आवाज़ जो है वो बार बार आ रही है. It didn't, instead there was a long and complicated pattern of melody, and बार बार आवाज़ आ रही थी और ये अब लंबी आवाज़ हो गई थी, आवाज़ बढ़ गई थी melody. That made me look up with such a start, and that I forgot all about the board just behind my head. When the stars had ceased to explode before my eyes, I had my first view of Claribel. Actually, when his head struck to the board, जब उनका सर टकराया बोर्ड से, एज यू कैन सी इन दी इमेज, तो तारे नज़र आ गए. ऐसा होता है ना कि स्टार्स से दिखाया जाता है कि चोट लगी है, लेकिन तभी इनकी नज़र उसी टाइम पर किस पे जाती है, फर्स्ट व्यू देखते हैं ये, पहली नज़र इनकी जाती है क्लैरिबेल, उस बर्ड पर. शी वॉज अ स्मॉल येलो कैनरी हैंगिंग इन द ईयर, एज मोशनलेस एज अ ह्यूमिंग बर्ड एंड विद मच लेस एफर्ट. हैंगिंग मीन्स आपको इमेज में नज़र आ ही रहा है, एज यू कैन सी वो हैंगिंग है, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है और उसको नीचे आएगी भी नहीं, और आराम से वो हवा में टिकी हुई है. वी स्टेयर्ड एट ईच अदर, हम दोनों ने एक दूसरे को घूरा, देखा. फॉर अ मिनट, 1 मिनट तक. बिफोर आई हैड रिकवर्ड माई विट्स, इससे पहले कि मैं रिकवर कर पाऊँ, मतलब कि ऑब्वियसली सर पे ज़ोर से चोट लगी है तो धीरे धीरे इंसान थोड़ा काबू में आता है. शी डिड अ काइंड ऑफ बैकवर्ड लूप, वो पीछे की तरफ उसने हल्की सी जंप ली. आई एम sure no earthbound canary had ever imagined. Then she departed with a few unhurried flick. It was quite obvious that she had already learned how to operate in the absence of gravity and did not believe in doing unnecessary work.
Actually, he was really amazed that a bird, without in the absence of gravity, is trying to manage somehow her body, and वो पीछे जाकर उड़कर अपने जगह पे जाने की कोशिश कर रही है। और वो ये नोटिस करता है कि कितनी जल्दी इसने अपने आप को ग्रेविटी की एब्सेंस में काम करना, अपनी बॉडी को मूव कराना सीख लिया है। और वो अननेसेसरी मतलब घबरा भी नहीं रही है कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये सब क्या है। बहुत पेशेंटली वो अपना काम कर रही है। Swan didn't confess to her ownership for several days. By that time, it no longer mattered because Claribel was a general pet. He had smuggled her up on the last ferry from Earth when he came back from leave. Partly, he claimed out of sheer scientific curiosity. He wanted to see just how a bird would operate when it had no weight but could still use its wing. Actually, उसने किसी को ये बात बताई नहीं कि उसके साथ ये बर्ड है काफ़ी टाइम तक। और ये बर्ड उसने जब खरीदा था, जब वो अपने घर गया था छुट्टियों के लिए, और वो देखना चाहता था कि वो बर्ड कैसे ऑपरेट करती है, कैसे रहती है इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। Claribel thrived and grew fat. Thrived means grew or developed well. कुछ दिनों में थोड़ी सी उसने फैट गेन के लिए थोड़ी मोटी हो गई, और उसको छुपाना थोड़ा सा अनऑथोराइज्ड गेस्ट व्हेन वीआईपी फ्रॉम अर्थ कैम विजिटिंग। जब वीआईपी आते अर्थ से स्पेस स्टेशन, तो उनसे इस चिड़िया को छुपाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। स्पेस स्टेशन हैव मोर हाइडिंग प्लेस देन यू कैन काउंट। आप सोच नहीं सकते इतने ज़्यादा छुपाने के लिए जगह होती है। द ओनली प्रॉब्लम वॉज दैट Claribel got rather noisy when she was upset. Actually, she was a bird. She was not a human being that can be जिसको आप समझा सकते हैं। So, जब कोई वो नर्वस होती तो वो ज़्यादा चहचहाती, ज़्यादा चिरपिंग करती तो उसकी आवाज़ और ज़्यादा आती। When sometime had to think fast to explain the curious peeps and whistles that came from ventilating shaft and storage place. और कई बार तो इतनी ज़्यादा उसकी आवाज़ आती बाहर की ओर। There were a couple of narrow escapes, but then who would dream of looking on a canary in a space station? लेकिन फिर भी ये था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इसके बाद आ भी जाए, कोई इवन इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि यहाँ पर एक ऐसी बर्ड छुपी हुई हो सकती है। We were now on 12-hour watches, which was not as bad as it sounds, since you need little sleep in space. Though of course there is no day and night when you are floating in permanent sunlight. Obviously यहाँ पे डे और नाइट तो होंगी नहीं, सनलाइट परमानेंट है। इट वॉज स्टिल कन्वीनियंट टू स्टिक टू द टर्म्स। तो हम इसलिए घड़ी के हिसाब से चलते थे, घड़ी जैसा कह रही है उसके हिसाब से हम अपना काम करते थे, अदरवाइज हमें पता ही नहीं चलता कब क्या वक्त हो रहा है। सर्टेनली व्हेन आई वॉक अप दैट मॉर्निंग, जब मैं सुबह सो के उठाई, इट फेल्ट लाइक 6 AM, सुबह 6 बजे का शायद टाइम होगा, अर्ली मॉर्निंग ऑन अर्थ के हिसाब से। तो आई हैड अ नैगिंग हेडेक एंड वैग मेमोरीज ऑफ फिटफुल डिस्टर्ब ड्रीम। फिटफुल डिस्टर्ब ड्रीम मीन्स ट्रबलिंग ड्रीम, जो परेशान करते हैं, दैट कंटिन्यू ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड एंड विच डिस्टर्ब स्लीप, जो हमको बार बार सोच हमारे दिमाग में चलती है, ख्वाब आते हैं, कोई ड्रीम आते हैं सपने, और नींद जो है हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। आई वॉज स्टिल ओनली हाफ अवेक व्हेन आई जॉइंड द रिमाइंडर ऑफ द ड्यूटी crew in the mess. Breakfast was unusually quiet and there was one seat vacant. हमेशा की तरह शांति थी नाश्ते पर और एक सीट वैकेंट थी. Where's Swan? I asked. He's looking for Claribel. Someone answered. Yes, he can't find her anywhere. She usually wakes him up. Actually, his bird was missing and his bird used to wax him up. That is why he was searching for his bird. Before I could retort that she usually walked me up to, Swan came in through the doorway. We could see at once that something was wrong. He slowly opened his hand and there lay a teeny bundle of yellow feathers with two clenched claws sticking pathetically up into the air. Actually, in his hand he was having yellow feathered. चिड़िया के जो पंख थे वो उसके हाथ में थे और उससे समझ में आ रहा था कुछ ना कुछ घटना घटी है. तो ऑल वर रियली डिस्ट्रेस्ड, परेशान थे. व्हाट हैपन्ड? वी आस्क्ड, ऑल इक्वली डिस्ट्रेस्ड. हम सब ने उससे साथ में ही पूछा क्या हुआ है. आई डोंट नो, सैड स्वैन.
mournfully. Mournfully मीन्स बहुत ही दुख के साथ. I just found her like this. तो वो तो मुझे इस तरह मिली है, मुझे नहीं पता इसे क्या हो गया. Let's have a look at her, said Jock Duncan. और कोक डॉक्टर, हमारे जो कोक डॉक्टर थे उन्होंने कहा डाइटिशियन कि लाओ इसको चेक करते हैं. वी ऑल वेटेड in hushed silent while he held Claribel against his ear in an attempt to detect any heart beat. जब उन्होंने उसके अपने कान के पास उसको ले जाकर उसकी सांस यानी दिल की धड़कन सुनने की कोशिश की कि whether he is live or not. Presently he shook his head. I can't hear anything but that doesn't prove she is dead. मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही है बट इसका मतलब ये नहीं ये मर गई है. I have never listened to a Candy's heart, क्योंकि मैंने कभी कैनरी के दिल की धड़कन नहीं सुनी है. He added rather apologetically मतलब कि बहुत ही उनको थोड़ा क्षमा मांगते हुए, मतलब उनको बुरा लग रहा था ये कहते हुए खुलकर कि शी इज़ नो मोर. दैट इज़ व्हाई ही सेड कि इट्स ओके, मे बी ये लाइव हो बट अभी मुझे आवाज़ तो नहीं आ रही है बट हो सकता है ये जिंदा हो. गिव हर आर शॉट ऑफ ऑक्सीजन. चलिए उसको एक ऑक्सीजन का शॉट दे देते हैं. सजेस्ट समबडी, किसी ने राय दी. पॉइंटिंग टू द इमरजेंसी सिलेंडर बिसाइड द डोर. एवरीवन agreed that this was an excellent idea. Claribel was tucked into a face mask that was large enough to serve as a complete oxygen tent for her. तो ऑक्सीजन मास्क जो था जिससे ऑक्सीजन ली जाती है वो तो इतना बड़ा था कि वो तो क्लैरिबल के लिए एक टेंट की तरह बन गया, घर के जैसा, जिसमें उसको डाल ही दो अंदर. एज यू कैन सी इन इमेज, तो मास्क के अंदर क्लैरिबल है. To our delighted surprise, she revived at once, beaming broadly. Swan removed the mask and she hopped onto his finger. She gave a series of sharp trills, then promptly keeled over again. So what happened? उसको थोड़ा होश आया और वो जंप करके स्वैन की फिंगर पर आकर बैठ गई. शार्प ट्रिल्स मीन्स शॉर्ट हाई पिचेस रिपीटेड साउंड. छोटी छोटी सी लेकिन थोड़ी गहरी वो आवाज़ निकाल रही थी, लाइक जैसे वो बीमार थी एक्चुअली. दैट इज़ वाई उसको कुछ हो गया था. और प्रॉम्प्टली कील्ड ओवर हो गई वापस. यानी कील्ड ओवर हो जाना, कील्ड ओवर मीन्स होना, बेहोश हो जाना, और टायर्डनेस की वजह से उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी अपनी बॉडी को. आई डोंट गेट इट, लेमेंटेड स्वैन. व्हाट्स रॉन्ग विद हर, शी इज़ नेवर डन दिस बिफोर. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसको हुआ क्या है. लेमेंटेड मीन्स एक्सप्रेस फीलिंग ऑफ ग्रेट सैडनेस. इतना ज़्यादा परेशान हो जाना. मुझे भी नहीं समझ आ रहा इसको हुआ क्या है. फॉर द लास्ट फ्यू मिनट्स समथिंग हैड बीन टगिंग एट माई मेमरी. माई माइंड सीम्ड टू बी वेरी sluggish that morning, as if I was still unable to cast off the burden of sleep. I felt that I could do with some of that oxygen, but before I could reach the mask, understanding exploded in my brain. I whirled on the duty engine and said urgently, Jim, there's something wrong with the air. That's why Claribel passed out. I have just remembered that miners used to carry canaries down to warn them of gas. तो नाउ बर्ड जो है वो उसकी डेथ हो चुकी है और जो स्वैन है वो स्लगिश फील कर रहा है. स्लगिश मीन्स लैकिंग एनर्जी. उसकी एनर्जी भी कम नहीं है, अलर्टनेस नहीं है उसके अंदर. एंड अनेबल टू कास्ट ऑफ बर्डन ऑफ स्लीप. उसको नींद पूरी नहीं हुई है तो उसके दिमाग में कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है. वो कुछ सोचने की, कुछ रिमाइंड करने की कोशिश कर रहा है, बट ही नहीं कर पा रहा है. सडनली उसको एक आइडिया, दिमाग में कुछ सोच आती है और वो है उस अपने इंजीनियर जो होता है उससे पूछता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है एयर के साथ, तुम जाओ और चेक करो. बहुत देर से यही तो हो रहा था. जो हमारा स्वैन है वो बहुत कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है जिससे ये बर्ड का डेथ हुआ है. सडन उसको ये दिमाग में आता है कि अपने इंजीनियर से बोलता है, गो एंड चेक, समथिंग इज़ रॉन्ग विद द एयर क्वालिटी और समथिंग एल्स. तो प्लीज़ तुम जाओ और चेक करो. तो जो जिम होता है, जो इंजीनियर होता है, तो वो कहता है कि अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो, हमारे पास अलार्म है, अगर ऐसे कुछ गड़बड़ होती तो ये बर्ड थोड़ी ही डेथ होती बर्ड की, उससे पहले हमको हमारे अलार्म बता देते कुछ ना कुछ गड़बड़ है. तो सेकंड अलार्म, तो फिर इतने में उसका जो असिस्टेंट होता है बोलता है कि अरे नहीं, हमारे जो अलार्म है उसमें से एक तो कनेक्टेड ही नहीं है, बस एक ही कनेक्टेड है. तो फिर
इतने में जिम को ऐसा लगता है कि चलो मैं जाके चेक करता हूँ, उसको नर्वस फील होता है कि मे बी ये सही कह रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो। देन वो जब चेक करने जाता है और वापस आता है तो उसको जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, शीपिश। अब हम यहाँ से इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द सेकेंड अलार्म सर्किट इजंट कनेक्टेड अप यार, सेकेंड अलार्म सर्किट तो भी कनेक्टेड ही नहीं है। हिज असिस्टेंट रिमाइंडेड हिम, उसका असिस्टेंट उसको याद दिलाता है। दैट शोक हिम जिम, और वो उसको हिला देता है। अरे यार ये क्या बात हो गई। ही लेफ्ट विदाउट अ वर्ड, वो बिना एक वर्ड बोले वहाँ से चला जाता है। वाइल वी स्टूड आर्ग्यूइंग एंड पासिंग द ऑक्सीजन बॉटल अराउंड, और जो बाकी लोग बचते हैं वो आपस में ऑक्सीजन बॉटल पास करते हैं। सांस नहीं आ रहा होता है क्योंकि सबको इसलिए। ही कैम बैक 10 मिनट, 10 मिनट बाद जब जिम वापस आता है चेक करने के बाद, तो उसकी एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, शीपिश मीन्स एम्बेरसमेंट से भरे हुए। उसको शर्मिंदगी होती है इस बात की कि वाकई उसे बहुत बड़ी केयरलेसनेस वाली चीज़ हो गई है, बहुत गलती हो गई बहुत बड़ी। इट वॉज वन ऑफ दोज एक्सीडेंट दैट कुडंट पॉसिबली हैपन, और ये उनमें से एक एक्सीडेंट है जो कभी इतनी ईजिली होता नहीं है, बट समहाउ हो गया। वी हैड वन ऑफ आवर रेयर एक्लिप्स बाय द अर्थ शैडो दैट नाइट, पार्ट ऑफ द एयर प्यूरीफायर हैड फ्रोजन अप एंड द सिंगल अलार्म इन द सर्किट हैड फेल टू गो ऑफ। वो बताता है अच्छा तो गड़बड़ यहाँ हुई है कि जो आखिरी रात थी हमारी उसमें क्या हुआ कि नाइट जो अर्थ की तरफ से शेडो आता है वो हो गया था, मतलब एक्लिप्स हुआ था अर्थ की तरफ से। उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखता है। तो उस रीज़न से एक अलार्म तो ऑलरेडी कनेक्टेड नहीं था, और जो दूसरा अलार्म जो कनेक्टेड था वो भी जैम हो गया, फ्रोज़न हो गया, और वो चल नहीं पाया। और हाफ ऑफ एंड द सिंगल अलार्म इन द सर्किट हैड फेल टू गो ऑफ, और एक अलार्म था बचा कुछ वो भी ऑफ हो गया। $500,000 वर्थ ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हैड लेट अस डाउन कम्प्लीटली। और इतना पैसा लगाकर, इतना केमिकल इंजीनियरिंग, इतना कुछ, इतना बड़ा प्रोसेस था अलार्म का, देखो आज उसने हमें डिबो दिया। मीन्स इतना पैसा, मिलियंस, बहुत बड़ा अमाउंट, अ बिग अमाउंट जो इन्वेस्ट हुआ था इन अलार्म्स पे, जस्ट टू मेक रिमाइंड, टू अवेयर द क्रू मेंबर दैट समथिंग इज़ गोइंग टू बी बैड, समथिंग इज़ गोइंग टू बी डेंजरस। तो उस अलार्म ने हमको अलार्म ही नहीं दिया, और बल्कि हमको किसने बचाया, उस बर्ड ने। किसने, क्लैरिबल ने, स्मॉल बर्ड ने। विदाउट क्लैरिबल वी शुड सून हैव बीन स्लाइटली डेड। अगर ये नहीं होती तो आज हम सब जो है अब तक मर जाते। उसी की वजह से ये बात पता चली कि अलार्म जो है वो एक कनेक्टेड नहीं है और दूसरा बंद हो चुका है। कोई भी मिसहैपनिंग अगर होती है तो इन लोगों को कुछ पता चलने वाला नहीं है, और डेंजरस है ये सिचुएशन काफ़ी। सो नाउ इफ यू विजिट एनी स्पेस स्टेशन, तो अगर आप कभी अभी स्पेस स्टेशन जाएँ, डोंट बी सरप्राइज इफ़ यू हियर एन अनएक्सप्लिकेबल स्नैच ऑफ बर्ड। अगर आप किसी चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ आए तो प्लीज़ आप सरप्राइज मत होइएगा। देयर इज़ नो नीड टू बी अलार्म। इसमें परेशान होने वाली तो बल्कि कोई बात ही नहीं है, ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि दूसरी तरफ सही बात तो ये है, इनफैक्ट हकीकत तो ये है, इट वॉज मीन दैट यू आर बींग डबली सेफगार्ड। डबली सेफगार्ड मीन्स, ओके, डबली सेफगार्ड मीन्स आपको डबल सुरक्षा मिल रही है ना, क्योंकि एक कैलिबर है और बाकी आपके अलार्म तो हैं ही जो काम करते हैं, कभी नहीं करते हैं। एट प्रैक्टिकली नो एक्स्ट्रा एक्सपेंस, और अगर प्रैक्टिकली देखें तो आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी नहीं देने हैं। तो यहाँ पर कैलिबर जो बर्ड है उसकी इंपॉर्टेंस बताइए कि समहाउ वो मर गई बट उसने सबकी बाकियों की जान बचा ली, और इसीलिए इस लेसन का जो नेम है वो भी क्या है, फेदर्ड फ्रेंड। ओके, सो योर होमवर्क इज़ डू workshop of this chapter and question answer I'll send to query group. And one most important thing, as you know आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 2 नवंबर से। those have submitted their fees are added to exam group and they are allowed to give exam for SA1. So आपका मेन एग्ज़ाम ग्रुप जो है उसमें बच्चे ऐड हो चुके हैं एंड those have not added till, प्लीज़ आप ऑफिस से, स्कूल ऑफिस से आप कांटेक्ट करें एंड ऐड उसमें हो जाए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर।